नेक्स्ट स्टेंजा है, मे शी बिकम अ फ्लरिशिंग हिडन ट्री दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी and have no business but dispensing round their magnanimities of sound, nor but in merriment begin a chase, nor but in merriment a quarrel. Oh, may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place. So next stanza में, the poet would like his daughter to grow like a flourishing tree hidden from the public gaze. ठीक है, ही वुड लाइक हर थॉट्स टू बी चीयरफुल लाइक द सॉन्ग्स ऑफ अ बर्ड. लिनेट जो है वो यहाँ पर एक बर्ड हो, अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग बर्ड. ठीक है, एंड ही वुड लाइक हर थॉट्स टू बी चीयरफुल लाइक द सॉन्ग्स ऑफ अ बर्ड. और ये चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उसके थॉट्स कैसे हों, लिनेट के जैसे हों, सॉन्ग्स ऑफ अ बर्ड. He would like her thoughts not to create any friction or conflict among others, but to contribute to large-heartedness and generosity in the world. He would like her not to get involved in any competitive struggle except for the sake of fun, and he would not like her to get involved in a quarrel except in jest. ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो किसी तरह की किसी स्ट्रगल में, किसी तरह की किसी क्वेरल में ना हो कभी भी. ठीक है, और अगर वो ऐसा करे तो इट विल बी जस्ट फॉर द फन. ठीक है, सिर्फ फन के लिए करे. ही विशेज हर टू लिव लाइक अ ग्रीन लोरेल ट्री रूटेड परमानेंटली इन वन डियर स्पॉट. ठीक है, ये चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो किसकी जैसे हो, लोरेल ट्री की जैसी हो. ठीक है, जो कि परमानेंटली रूटेड होता है. नेक्स्ट स्टेंजा है, माई माइंड because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, has dried up of late, yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief. If there is no hatred in a mind, assault and battery of the wind can never tear the linnet from the leaf. So the poet says that the sad fate of the persons whom he has loved and the disappointing conduct of the beautiful woman whom he admired have caused in him a great depression of spirit, and he is now of the view that the public is not to be relied upon or to be trusted. ठीक है, तो यहाँ पर पोइट जो है वो एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंस दे रहे हैं और वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंस उनको लोगों के साथ में और जो एक्सपीरियंस उनको मॉडगॉन के साथ में मिला. ठीक है, और अब यीट्स जो है वो उस सिचुएशन में है कि ही कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन और टू बी ट्रस्टेड, कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसा ही वो अपनी बेटी के लिए प्रे करते हैं. ठीक है, द पोइट इज़ हियर थिंकिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी ऑफ द पब्लिक टुवर्ड्स सम ऑफ द पीपल whom he loved. And in spite of that, the poet believes that it is a great misfortune to nourish feelings of hatred towards others, and if a man has no hatred in his mind for anyone, no harm can come to him from the storms of life. तो एक तरह से हीट्स यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है एंड उसके मन में किसी के प्रति कोई भी हैट्रेड ना हो. ठीक है, किसी भी तरह की नफ़रत वाली फीलिंग्स ना हो, क्योंकि अगर उसके दिमाग में, उसके मन में किसी के लिए नफ़रत नहीं होगी तो नो हार्म कैन कम टू हिम फ्रॉम द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा. नेक्स्ट स्टेंजा है, कंसिडरिंग दैट ऑल हैटेड ड्राइवन हैंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting, and that its own sweet will is heaven's will. She can, though every face should scowl and every windy quarter howl, or every billow's burst, be happy still. So the kind of intellectual hatred, एक स्टेंज हमने छोड़ दिया है. तो पहले है
An intellectual hatred is the worst. So let her think, यहाँ पर जो हर यूज़ किया है उन्होंने एन के लिए ही, अपनी डॉटर के लिए यूज़ किया है. So let her think opinions are accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn. यहाँ पर जो उन्होंने यूज़ किया है the loveliest woman born, वो उन्होंने मॉडगॉन के लिए यूज़ किया है. Because of her opinionated mind, barter that horn and every good by quiet natures understood for an old billows full of angry wind. So the kind of intellectual hatred that Mordaunt had for the English rulers of Ireland is the worst form of hatred. तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल हैट्रेड दैट इज़ द वर्स्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट, वो यूज़ कर रहे हैं मॉडगॉन के लिए, कि मॉडगॉन जो आयरलैंड में इंग्लिश रूलर्स थे उनके प्रति मॉडगॉन की जो नफ़रत थी, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल हैट्रेड थी, इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ हैट्रेड. ठीक है. सो द पोइट वुड लाइक his daughter not to have strong opinions of an intellectual kind, because such opinions lead only to suffering and unhappiness. तो पोइट यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो किसी भी ओपिनियन में इतना स्ट्रोंग नहीं हो. ठीक है. He cites the example of the loveliest woman Mordaunt, who came of a rich aristocratic family but whose strong intellectual opinions made a mere windbag of her. Under the influence of strong political opinions, Mordaunt sacrificed her prosperity and her excellent qualities of birth and breeding in order to become an angry agitator and propagandist. ठीक है. तो यहाँ पर मॉडगॉन का एग्जाम्पल देके ये अपनी बेटी के लिए एक तरह से प्रे कर रहे हैं कि मॉडगॉन की जैसे वो इंटेलेक्चुअल हैट्रेड से कर्स्ड ना हो. ठीक है. इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैट्रेड वो ना रखें. उसके ओपिनियंस जो हैं, ठीक है, पॉलिटिकल ओपिनियंस या फिर किसी भी बारे में जो ओपिनियंस हैं जैसे कि मॉडगॉन के थे, ठीक है, उस तरह के ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्ग, इतने क्रिटिकल ओपिनियंस उसके ना हो. Considering that all hatred driven hence, the soul recovers radical innocence and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrighting, and that its own sweet will is heaven's will. She can, though every face should scowl and every windy quarter howl or every billows burst, be happy still. So in the next stanza, if a human being drives out all hatred from his mind, his soul will recover its original basic innocence. ठीक है. अगर एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो अपने मन से सभी तरह की हैट्रेड जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, उनको अगर निकाल दे, ठीक है, तो हिज सोल विल रिकवर इट्स ओरिजिनल बेसिक इनोसेंस. सच अ ह्यूमन बीइंग विल लर्न दैट हिज सोल हैज़ इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ ऑल द जॉय that one meets in life, and the will of such a soul. Which kind of soul? A soul that is free from hatred is God's own will. ठीक है. एक इंसान की सोल जो कि फ्री है किससे? ऑल काइंड्स ऑफ हैट्रेड, सभी तरह की हैट्रेड से, इज गॉड्स ओन विल, वो भगवान की खुद की क्या होगी? इच्छा होगी. तो पोइट यहाँ पर एक तरह से चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है उसकी जो सोल है वो कैसी हो? इनोसेंट हो, प्योर हो. ठीक है. इट विल बी वॉइड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ हैट्रेड. एंड द पोइट्स डॉटर कैन बाई राइडिंग हर एंड ऑल हैट्रेड lead a happy life no matter what the attitude of people towards her might be and what hostile opinions they might express. तो किसी भी तरह के hostile opinions लोग उसकी बेटी के लिए रखें तब भी वो कैसी लाइफ जी सकती है? एक प्रोस्परस, ठीक है, एक हैप्पी लाइफ जी सकती है. नेक्स्ट स्टेंजा है, एंड मे हर bridegroom bring her to a house where all accustomed ceremonies, for arrogance and hatred are the wares peddled in the thoroughfares. How but in custom and in ceremony
Our innocence and beauty bond ceremonies, a name for the rich horn and custom for the spreading laurel tree. So in the final stanza, the poet wants his daughter to be married to a man who belongs to a family that believes in the value of custom and ceremony. ठीक है, तो ये जो है वो खुद इंटरेस्टेड थे, ठीक है, खुद वो बिलीव करते थे किसमें, सेरेमनीज़ में, ठीक है, कस्टम्स में और एटिकेट्स में, ठीक है, कर्टसी में। और कर्टसी भी किस तरह की, फॉर्मल कर्टसी, तो वो कर्टसी तो ऐसे ही अपनी बेटी के लिए भी प्रे करते हैं कि उसकी बेटी भी जो है वो इस तरह की फैमिली में जाए। सो द पोइट वॉन्ट्स हिज डॉटर टू बी मैरिड टू अ मैन who belongs to a family that believes in the value of custom and ceremony, and custom and ceremony are opposed to arrogance and hatred. Custom and ceremony give birth to innocence and beauty according to the poet, and he was a great upholder of the formal courtesy. He believed in formal courtesy, etiquettes, ceremonious behavior, customary graces, etc. of the great aristocratic households. He did not believe in the crudity of the masses or all the attitudes propagated by socialist, ठीक है। तो वो जो भी हाई क्लास सोसाइटी थी, जिनके एटिकेट्स थे, जिनके मैनर्स थे, जिनके फॉर्मल कर्टसी थी, ठीक है, और जिनके सेरेमनियस बिहेवियर थे, वो उन सब में विश्वास करते थे और वो चाहते थे कि उनकी जो बेटी है उसको भी एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर बने जिसकी फैमिली में ये सब बातें हों, ठीक है। ऐसा वो अपनी बेटी एन के लिए प्रे कर रहे हैं। तो ये हमारी पॉइंट थी जिसमें उन्होंने एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंस भी दिया है कि किस तरह से उनको लोगों से हॉस्टिलिटी मिली, ठीक है, और किस तरह से मोडगोन ने उनको चीट किया जिसके साथ वो प्रेम में थे जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी, ठीक है। और यहाँ पर वो अपनी बेटी के लिए प्रे कर रहे हैं कि उनकी जो बेटी है वो किस तरह की हो, उसकी फीलिंग्स किस तरह की हो, किस तरह से वो अपनी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा प्राउड ना करे जैसा कि मोडगोन ने किया था, और किस तरह की उसकी बेटी बने, ठीक है। और जो भी आने वाला फ्यूचर है उसमें सिचुएशंस कैसी होंगी, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी होंगी, सोशल सिचुएशंस कैसी होंगी, तो जो भी स्टॉर्म्स आएंगे उन सबको वो ब्रेवली फेस कर पाए, ऐसी बने, ठीक है।